Good morning, dear friends. We shall once again start with our topic, wave optics. I hope you have seen the last lecture. But today we will go for Huygens construction for plane wavefront. So yesterday I have taught you the concept about the wave theory of light, in which we have considered the Huygens principle. So Huygens principle, what he told, each point on a wavefront acts as a secondary source of light, sending out secondary waves. The envelope of all these secondary waves gives rise to the new wavefront at that instant. So we have seen yesterday Huygens construction for spherical wavefront. Now we'll go for understanding the Huygens construction for plane wavefront. So you may note down that I'll go for Huygens construction for plane wavefront. So now, suppose you are having a plane wavefront, okay, originating from distant source. So I will not show the source, I will only show the plane wavefront. So according to Huygens theory, each point on a wavefront acts as a secondary source of light, sending out secondary wavelets. So let me call this to be my original wavefront. I will write this to be original wavefront. And now each point on this original wavefront I will consider as a secondary source of light. S dash I will consider to be every, okay, sending out the secondary waves. So first, case 1, speed, that you know, speed is equal to c is equal to constant. So at time t क्या होगा बेटा? At time t, distance traveled will be ct, but that will be very long because it is coming from long source. So here we will not consider this case. ये केस कंसिडर करने का सवाल ही नहीं होता. केस 2 में जाते हैं. इस केस में क्या हो जाएगा? At later time t1, so distance traveled कितना आएगा बेटा? Of course distance traveled will be ct1, जैसे हमने स्पेरिकल में कंसीडर किया था वैसे ही. So draw the sphere having the radius equal to ct1. ओके, इसको ड्रॉ करो. तो इसको ड्रॉ करने के बाद मेरे को आइडिया आ जाएगा. तो ये हर एक का एक एक सर्कल बनता जाएगा. सो इस सर्कल को थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं. बन गया बेटा? तो ऐसा हर एक का हाफ सर्कल बनाने का आपको, बिकॉज फॉर द बैकवर्ड मोशन वी आर नॉट कंसिडरिंग द बैकवर्ड मोशन. तो अगर इसमें इसको मैंने जोड़ दिया, इफ आई कनेक्ट दैट, इसको ठीक कर लेता हूं. इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा secondary new wavefront due to secondary wavelets. So at later instant of time I am getting the new wavefront. Later instant of time I will get a new wavefront. समझ गया बेटा आपको? ये था ओरिजिनल वेवफ्रंट. बाद में मैंने क्या किया? S डैश को मैंने क्या बोला? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. एंड यहां से जो आगे जाएगा दैट विल बी योर सेकेंडरी वेवलेट्स. सो लेट मी रिकॉल द Huygens construction for the plane wavefront, because of which we are able to get a new plane wavefront at that instant. Are you getting my point? So I hope you have understood that.
ओके, ठीक है, आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. तो यहां से आगे हम क्या करेंगे, दैट वी विल सी. ओके, now we have to derive two important scenarios. We have to derive two important laws. One is law of refraction, another is law of reflection. So number one, derivation for law of refraction. Of course, it will be termed as Snell's law using Huygens principle. ये very important है. I will suggest you to note this down and watch it carefully what I am explaining. This comes for the board type questions. बोर्ड में ये आपको लगातार पूछते जाते हैं, हर साल को पूछा है उन्होंने. So I will suggest you to note this down very precisely and very perfectly. तो यहाँ पे क्या किया है, तो अभी तक till now we have studied the refraction of a single light ray. एक लाइट रे किसी भी इंटरफेस पे आया, then what is the refraction of light that we have seen. Now we will see, instead of one light ray, if a bundle of light rays, means I will not take much more, I will take two. So I will take two rays which are creating a plane wavefront. If they are coming, of course originated from the far source, if they are coming at the boundary separating rarer and denser medium, then what happens, that we are going to study here. So let us start with the derivation for laws of refraction. Are you getting my point? Okay. So ये जो डायग्राम है आपको ठीक से निकाल के लेना पड़ेगा. So I will suggest you to be ready with your notebook, pen and your brain. Notebook, pen and brain. Okay. So shall we start? Okay. Shall we start? So now here मैं एक डायग्राम निकालता हूं. I am creating a boundary. So this is my boundary. So this is, suppose this is my rarer medium and this is my denser medium. Suppose this is my air, इसको मैं बोलता हूं air. ये है मेरा rarer medium. और यहां पे मैं बोलता हूं इसको ग्लास. नहीं तो 1 और 2 करते हैं. सो आपके लिए अच्छा रहेगा वो, बिकॉज अदरवाइज यू विल कॉपी डाउन दैट. सो यहां पे लिखता हूं मैं मीडियम 1, मीडियम 1, इनको बोलता हूं रेरर. और यहां पे लिखता हूं मैं मीडियम 2, इसको बोलता हूं मैं डेंसर. लेट मी टेक आउट माय रिंग, हर टाइम को परेशान करती. मीडियम 2, इसको बोलता है डेंसर मीडियम. नाउ कंसिडर a plane wavefront which is coming incident on the boundary separating two media. तो वेवफ्रंट कैसे बनेगा? 2 पैरेलल रेज. 2 पैरेलल रेज से अपना वेवफ्रंट बनेगा. तो वेवफ्रंट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए बेटा? 2 रेज चाहिए और प्लेन वेवफ्रंट है. ओके. सो इसी को ही बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट. Sometimes in your board they may ask, explain the refraction of the plane wavefront using the Huygens principle.
तो यही आपको डिराइव करना होगा, दैट विल बी माय सजेशन। सो आगे जाते हैं। आगे में क्या है, इसको एक और पैरेलल रे निकालते हैं, लेकिन इसको यहां तक लेके नहीं जाने का है, क्योंकि अगर वो प्लेन वेवफ्रंट है और इंक्लाइंड है तो हमको यहां तक ही देखना है, क्योंकि ये वेवफ्रंट मतलब इट विल गो साइमल्टेनियसली ना, इट विल गो साइमल्टेनियसली। वेवफ्रंट मतलब ये रेज को मत पकड़ो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाया है उनको पकड़ो। तो उसके हिसाब से सो सपोज इसको मैं बोलता हूं वेवफ्रंट ए बी, तो मेरा ए बी क्या बन जाएगा, इंसिडेंट वेवफ्रंट। ए बी क्या बन गया मेरा, इंसिडेंट वेवफ्रंट बन गया। ओके, और इसके आगे क्या करेंगे अभी वो देखते हैं थोड़ा सा। नाउ सो दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम। ए बी का ये वाला पार्ट, दिस पार्ट ए हैज ऑलरेडी incident on the boundary. The part A is already incident on the boundary. तो बेटा क्या हो जाएगा, after this it will go through the medium 2 which is denser medium. Okay, so it will get refracted, it will get refracted. तो यहाँ पे मैं नॉर्मल, सिंपल नॉर्मल निकालता हूँ, तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये अभी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सो ये ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, बट इट हैज वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर। तो ये बन गया ऐसे, एंड दिस इज माय आर। समझ गए बेटा? नाउ इट हैज स्टार्टेड द जर्नी इन मीडियम 2। तो यहां पे आपको वो भी लिखना पड़ेगा, सपोज v1 इज स्पीड इन मीडियम 1 एंड v2 विल बी स्पीड इन मीडियम 2। अगर ये v1 इस मीडियम में स्पीड है तो v2 स्पीड इन मीडियम 2 बन जाएगा। तो ये बन गया। तो बेटा इसके आगे क्या बन जाएगा, सो अभी क्या हो जाएगा, माय फर्स्ट रे हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स जर्नी थ्रू द मीडियम 2। अनफॉर्चुनेटली सेकंड रे हैज नॉट स्टिल स्टार्टेड जर्नी थ्रू मीडियम 2. It is still in medium 1. Now what happens? So I have to find the time required for this ray B to come here. So now the time in which the second ray will reach, say, point C, in that time this will reach some point D. This will reach some point D, and once it will reach the point C, again यहाँ पे ये नॉर्मल बनाएगा और इसको ये पैरेलल जाएगा, मतलब जितना उसका डेविएशन हो रहा है उतना ही इसका डेविएशन हो जाएगा। देन आई विल गेट, तो इसको मैं ए बी है तो इसको मैं ए डैश बी डैश बोलता हूँ, ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ ए डैश, ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ बी डैश। सो आई विल गेट ए डैश बी डैश टू बी माय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो ए डैश बी डैश क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ गए बेटा क्या थियरी एक्चुअली क्या है असल में उसका? सो
ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ये तो कॉमन डिस्टेंस है, ये तो कॉमन डिस्टेंस है. Then what we will look for? Then we will look for these two distances which are important for us. ये बन गया मेरा B B dash and A A dash. ये क्यों important है? Because B B dash is the distance traveled. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. B B dash is the distance traveled in rarer medium. समझ गए बेटा? B B dash is the distance traveled in rarer medium with speed or velocity v1, and A dash will be the distance traveled in denser medium with speed v2. B B dash मेरा क्या है? Distance traveled in rarer medium with speed v1, and A dash will be distance traveled in denser medium with speed v2. So but मैंने ये पॉइंट कब लिया है? मैंने ये पॉइंट ऐसे एडजस्ट किया है जिसका मतलब है जब मेरा B पॉइंट मतलब ये रे B से यहाँ पे आएगा, बाउंड्री तक आएगा, तो यहाँ से A वाला रे आगे कितना जाएगा? उसी टाइम में. So in the same time t, so as first we will write as v1 is greater than v2 because optical density of medium 1 will be less than optical density of medium 2. तो जिसका optical density कम है उस मीडियम में लाइट will go with higher speed, और जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसमें लाइट कम स्पीड से जाएगा. I have told you that if you are having a ट्रैफिक है तो अपना गाड़ी स्लो चलता है. ट्रैफिक मतलब डेंसिटी, डेंस. तो whenever the traffic is more, that is the density is more, speed will be more, and whenever the traffic will be less, that is the density will be less. Speed will be in first case speed first. Okay. Let me start with once again. Whenever the traffic is more, that is the density is more, speed will be less. ट्रैफिक में कैसे चलाओगे गाड़ी? वैसे इधर डेंसर मीडियम में ट्रैफिक ज्यादा है, लाइट को ज्यादा अपोज का सामना करना पड़ेगा. अगर उसको ज्यादा अपोज का सामना करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं ना हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा. और यहाँ पे ये जो हायर स्पीड से काम करेगा, तो v1 will be always greater than v2. If v1 is greater than v2, of course b b dash, v1 ज्यादा है ना, इसका स्पीड ज्यादा है. अगर स्पीड ज्यादा है तो उसी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो वॉट एवर द डिस्टेंस ट्रैवल b b dash implies क्या बन जाएगा? b b dash will be greater than a a dash. Are getting my point? Okay. Now यहां से ये जो दोनों एंगल है, कौन से एंगल? ये मैं जो बता रहा हूं आपको, ये एंगल, ये एंगल, ये तो 90 डिग्री है. अरे गेटिंग माय पॉइंट? जितना ये रिफ्रैक्ट करेगा उतना ही ये रिफ्रैक्ट करेगा. अरे गेटिंग माय पॉइंट? ये आई है, इसका मतलब ये भी आई चले. तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स ज्योमेट्रिकली, इसीलिए इस फील्ड को बोलते हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. तो यहाँ पे आई विल यूज द ज्योमेट्री टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉ. कैसे करता हूं अभी देखो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन and we will go for the next part of the derivation. तो अभी क्या हो जाएगा देखो. अभी यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल लेता हूं. कंसिडर ट्रायंगल A B dash B and A dash A B dash. Sorry, A B B dash
and a dash b dash. RHS क्राइटेरिया यूज करेंगे and applying RHS criterion. ओके, तो क्या हो जाएगा, उनका जो रेशियो है, रेशियो, द रेशियो विल बी सेम, AB upon A dash B dash will be equal to AB dash upon AB dash. तीनों भी साइड का रेशियो लेते हैं, AB upon A dash B dash is equal to AB dash upon AB dash, दोनों का भी एक कॉमन साइड है, is equal to A, पहले किसका लिया है, B B dash ना, तो ये ऐसे हो जाएगा AB upon A dash B dash, A dash B dash, A B dash upon A B dash, अभी A B पहले लिया था, मतलब ये B B dash पहले आएगा, B B dash upon A dash. तो यहां से आगे जाएंगे, यहां से आगे क्या मिलेगा अभी देखते हैं, बट मेरा A B dash upon A B dash 1 है. Are you getting my point? Are you getting my point? So ये कैसे बनेगा, सॉरी मैंने कुछ तो गलत लिखा है, B B dash तो सेम नहीं आ सकता, हाँ रेशियो सेम आना चाहिए, ये कॉमन है ना. तो हम क्या करते हैं, ये भी सेम आएगा आपका, खाली ये आपका कम ज्यादा आएगा. ओके, सो एंगल को हम इक्वेट करते हैं. ओके, एंगल को हम इक्वेट करते हैं. इसके लिए अगर स्नेल्स लॉ यूज किया तो कैसे बन जाएगा, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसके लिए भी sin i अपॉन sin r विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बट व्हाट विल हैपन देन, दैट वी विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो यहां पे अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है तो ये रिफ्रैक्शन भी सेम हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे ये अगर I है, ये अगर I है, ये अगर R है, तो ये भी मेरा I बनेगा. जितना इसको ट्विस्ट किया है ना, ऐसा आया है, तो वर्टिकल से इसने जितना एंगल किया है, ये आपको मैंने बताया था, ये अगर हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल किया है, वर्टिकल से इतना एंगल किया है I, तो उसको जो परपेंडिकुलर वो भी हॉरिजॉन्टल से I ही एंगल करेगा. तो ये आपका बन जाएगा I, ये बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, इसका कितना बन जाएगा, यहां पे R बन जाएगा. यहां से हम sin I लिखते हैं. sin I कितना आएगा बेटा, sin I विल बी अपोजिट B B dash अपॉन हाइपोटेनस A B dash. कौन से, RHS क्राइटेरिया यूज भी मत करो, नहीं भी यूज किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी लिखा तो भी चलता है, बाद में करेंगे. ओके, कंसीडर, ये ट्रायंगल को खाली कंसीडर करो और एक एक चीज बनाते जाओ. sin I कितना मिल गया, B B dash अपॉन A B dash. अब यहां से आई हैव टू फाइंड, ये समझ गए आपको, ये I कैसे आता है और ये R कैसे आता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसने कितना नीचे गया है, कितना डेविएट हुआ है, R डेविएट, तो नीचे भी R जाएगा. यहाँ पे I से डेविएट है उधर, तो यहाँ से भी ये I से डेविएट हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट थिंग आप कंसिडर करो. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ये I लिखता हूँ, इसको R लिखता हूँ. तो sin I, ये कौन सा ट्रायंगल है, फ्रॉम ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा है, A B B dash. sin R कैसे बन जाएगा अभी देखते हैं. sin R दिखाने के लिए यहां से आपको दिखाता हूं, A dash B dash ट्रायंगल में sin R अपोजिट A dash अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कॉमन पकड़ने का, तो sin R
will be sorry a dash upon a b dash. ये कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? फ्रॉम ट्रायंगल a dash b dash. तो मिल गया अपन को अभी, there is no problem. So but b b dash कितना है आपका बेटा? b b dash is the distance traveled in time t by the wave in medium 1. b b dash क्या है? distance traveled ठीक से लिखते हैं, distance traveled by wave in medium 1 with velocity v in time t. इसको लिख के लो अगर आपको नहीं मालूम है तो. b b dash कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन मीडियम 1 विथ वेलोसिटी v इन टाइम t. तो b b dash कितना बन जाएगा बेटा? यहां पे लिख देता हूं. b b dash मेरा बन जाएगा, ऑफ कोर्स मेरा b b dash कितना बन जाएगा? स्पीड कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. तो t टाइम में b b dash डिस्टेंस कितना बनेगा? v1 यहाँ का स्पीड है, v2 यहाँ का स्पीड है, तो यहाँ तो v1 t बन जाएगा, v1 t बन जाएगा. और सिमिलरली मेरा a dash कितना बन जाएगा? तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको पहले वाले को हटा देता हूं एंड आई विल गो फॉर राइटिंग a dash. ओके and a dash same distance traveled by wave, okay, in medium 2 with velocity v in time t. तो a dash कितना बन जाएगा मेरा? a dash will be v2t. इसको बोलो नंबर 3, इसको नंबर 4 बोलो. तो यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2 क्या मिलेगा बेटा अपने को? क्या मिलेगा अपन को? we will get sin I upon sin R will be b b dash upon a b dash, इसका उल्टा into a b dash upon a dash. a b dash will get cancelled and I will get b b dash upon a dash. हो गया. आपको ध्यान में आया होगा क्या हो रहा है. तो हो गया, अभी डेरिवेशन ही खत्म हो गया. तो क्या बनेगा अभी? एकदम सिंपल है. Therefore क्या लिख सकता हूं मैं? Therefore sin I upon sin R will be b b dash कितना है मेरा? v1t upon a dash कितना है? v2t. t ने t को काटा, therefore sin I upon sin R is equal to v1 upon v2. तो v1 upon v2 क्या होता है? मैंने आपको दिखाया था. ओके तो यहां से आगे क्या स्टेप बन जाएगा? बट n21 is n2 upon n1 is equal to v1 upon v2. इसको ही आप mu2 बोल सकते हो, mu2 upon mu1. तो म्यू लिख सकते हो उसको, देयर इज नो प्रॉब्लम. बुक में आपको म्यू दिया है, हम म्यू मैं तो यूज नहीं करता म्यू, मैं एन और ईटा यूज करता हूँ. ओके तो उसको आप ठीक से, इसीलिए देयरफॉर sin I upon sin R will be n21 or is equal to, or it will be equal to mu, or sin I upon sin R will be equal to mu, the refractive index of the media. So in this way we have derived the Snell's law by using Huygens
प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल कैसे हमने लिया, हाइजेंस प्रिंसिपल कैसे लिया, जो मैंने ये चीज बताया आपको, ये चीज बताया, तो यहां पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये बाद में लिख लो, each point on a wavefront acts as a secondary source of light, sending out secondary wavelets. The envelope of all these secondary wavelets gives rise to the new wavefront at that instant. तो यहाँ पे वेवफ्रंट पे A और B मिलके दो डिफरेंट वेव तैयार करेंगे। अभी तक क्या था, अभी तक था कि आपका वेवफ्रंट एक ही मीडियम में चल रहा था, अभी तक आपका वेवफ्रंट एक ही मीडियम में जा रहा था। तो ये जो आपका बन रहा था, अगर मैंने इन दोनों को लिया, इनका जो बन रहा था ये डायरेक्टली आपका वेवफ्रंट ऐसे बन रहा था। तो यहां पे भी अपना वेवफ्रंट बन गया है, लेकिन बट whatever it has created that is not same as whatever I have told you here. जो मैंने यहाँ पे बताया ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज किया। तो वो कहाँ यूज किया, खाली इन दोनों पॉइंट के लिए। तो ये दो पॉइंट जो है, these are the very important points in your result. तो आपका रिजल्ट आने के लिए, लाने के लिए ये पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान में रखना होगा, और ये पॉइंट नंबर 2, और जो मैंने आपको वैल्यू बताया साइन आई और ऑल्सो साइन आर, दोनों का भी जो वैल्यू मैंने आपको बताया, those values are very important. So in this way we have studied the refraction of plane wavefront. Okay, that is the derivation for the Snell's law or refraction of plane wavefront by using Huygens principle. तो मैं एक बार इसका हल्का आपको रिवाइज करता हूँ, then we'll go for next property that is called as the reflection of plane wavefront. Are you ready for that? Okay. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो मैंने एक वेवफ्रंट कंसीडर किया, इंसिडेंट वेवफ्रंट मेरा है AB, मीडियम 1 में वो ट्रैवल कर रहा है, एंड इट हैज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री सेपरेटिंग मीडियम 1 एंड मीडियम 2, वेयर माय मीडियम 1 इज रेयर मीडियम एंड माय मीडियम 2 इज डेंसर मीडियम। मीडियम 1 के लिए क्या होता है, वो ग्रेज ऐसा तिरछा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो A will reach first and then B will reach. So suppose A reaches first, then after that A will start its journey through medium 2, but B has not still reached the medium 2, so it will continue its journey in the medium 1. So in time t, the distance traveled by the ray 1 will be in medium 2, that will be A dash. In the same time, the distance traveled by ray 2 in the medium 1 will be B dash. तो B dash का वैल्यू कितना आएगा, of course V1t, because V1 is the speed of light in medium 1. यहाँ पे आएगा V2t, speed of light in medium 2. बोर्ड को क्या करते हैं, आपको उल्टा पूछते हैं, जैसे मैंने आपको अभी AC में एक ट्विस्टेड क्वेश्चन डाला था लास्ट का, सब बच्चों का मुझे रिप्लाई आया, सर द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सर व्हाट टू डू। अरे क्या है बेटा, मैंने पूछा था LCR का एनालिटिकल सॉल्यूशन, है ना, जबरदस्त है ना। some student have solved that, they have tried to solve. तो बेटा वो एनालिटिकल सॉल्यूशन तो मैंने 2 लेक्चर दिया है उसके लिए, कितना, 2 लेक्चर पूरा 1-1 घंटे का, मतलब 2 घंटा आपको सिखाया। अगर मैं 2 घंटा आपको सिखाया हूं, आपने वो पढ़ा है तो आपको आता होगा, but maybe due to not understanding the question you would have not solved that, I think. तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके डालेंगे, कैसे डालेंगे, रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, नो प्रॉब्लम। तो आपके 2 फिगर बन सकते, वो भी आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आगे का तो एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करने का है मैं बताता हूँ आपको। तो आपकी डायग्राम में इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, दैट आई विल सजेस्ट यू। कभी कभी बोलते हो आप डायरेक्टली सोचो और करो,
आप डायरेक्टली सोचो करो किया तो यही पूरा छाप डालने का, इसमें कुछ चेंज नहीं करने का। लेकिन इफ दे आर आस्किंग दैट लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, प्लेन वेव फ्रंट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, उसके लिए आप करो। तो मैं आपको दोनों भी डायग्राम निकाल के दिखाता हूं, उसके हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा। बाकी डेरिवेशन तो सेम ही रहेगा, खाली डायग्राम चेंज रहेगा और उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, पहले रेयर टू डेंसर में जाते हैं। अभी जो डायग्राम किया तो रेयर टू डेंसर, तो ये क्या बन जाएगा, एकदम रफली आपको दिखाता हूँ, ज्यादा कुछ इसमें करता नहीं हूं मैं। ये ऐसे आए, ओके, यहाँ पे मैंने मेरा परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ पे नॉर्मल डालने का, यहाँ पे नॉर्मल डालने का, ओके। तो ये ज्यादा दिखाने का, ये कम दिखाने का, बी बी डैश, ए डैश, ज्यादा बाकी कुछ दिखा नहीं रहा हूं मैं यहाँ पे, डिटेल्स ज्यादा नहीं, यहाँ पे रेयर और यहाँ पे डेंसर। अगर लाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 दैट इज N2 अपॉन N1 दैट इज N12 सॉरी N21। ये आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा। सब आपको लिख के दे रहा हूं, बाद में मत पूछो, फाइनल रिजल्ट बाद में मत बोलो सर ने पढ़ाया नहीं था, पूरा पढ़ा चुका हूं आपको। इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं बार बार बोल रहा हूं। इसका मतलब आप जान गए होंगे कि बोर्ड एग्जाम को ये 100% आता है, तो इसको 100% लिखो, 5 स्टार बनाओ। अभी ये बताने का जरूरत नहीं है आपको, 5 स्टार बनाया, 100% दिया, तो ये आपको हर टाइम इसका प्रैक्टिस करके रखना है। कुछ भी कैसा भी प्रॉब्लम आए, खाली यहाँ पे अगर डेंसर है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ये करूंगा। अभी लाइट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा, बाकी सब सेम हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, अब ये डेंसर में ट्रैवल कर रहा है, तो यहां से व्हेन इट विल गो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको ये डायग्राम में आपका चेंज आएगा, ये आर आएगा आपका, ये आएगा, ये आर आएगा। तो यहां से अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर निकाला तो ये मेरा बी बी डैश और ये बन गया मेरा ए डैश। तो बेटा यहाँ पे लिखूंगा मैं डेंसर, यहाँ पे लिखूंगा मैं रेयर, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन दिस एंड दिस, तो यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाएगा, यहाँ पे बी बी डैश will be greater than a dash and V1 will be greater than V2। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आएगा B B dash will be less than A dash because यहाँ पे रेयर मीडियम, तो यहाँ तो वो फास्ट जाएगा, तो जितना टाइम ये B से B dash तक जाने के लिए लगाएगा उस टाइम में ज्यादा डिस्टेंस दौड़ेगा, क्योंकि दिस मीडियम इज रेयर। तो अगर ये रेयर मीडियम है तो ये फास्ट जाएगा, इस मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो मेरा V1 will be less than V2। और यहाँ पे साइन कैसे निकालेंगे, फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, तो फाइनल रिजल्ट बेटा आपका आएगा, फाइनल रिजल्ट विल बी साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ, यहाँ पे आई बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा, यहाँ पे भी आई बनेगा, यहाँ पे भी आर बनेगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्या बनेगा, आप ही बोलो, साइन आई अपॉन साइन आर कैसे बनेगा, बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सा मैं आपको वक्त देता हूं। यहाँ पे क्या आएगा, अभी डेंसर क्या लिया है ना, तो यहाँ पे आपका मीडियम वही रखा है ना आपको, तो वहां पे वो V2 हो जाएगा, V2, ये वेलोसिटी V2 हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो V2 विल बी लेस देन V1, V2 विल बी लेस देन V1, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे V1 V2 लिया, तो डेंसर के लिए 1 रखने का, रेयर के लिए 2 रखने का। डेंसर पूछा तो 1, रेयर पूछा तो 2, समझ गए?
तो V1 नहीं लिखने का क्योंकि डेंसर है, तो यहाँ पे V2 और यहाँ पे V1। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, अगर बेटा मैं मीडियम खाली उल्टा पुल्टा कर दूं, अरे बेटा मीडियम का वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा क्या? नहीं। तो हर टाइम रेयर मीडियम में वेलोसिटी फास्ट होगा, स्पीड फास्ट होगा, डेंसर मीडियम में स्पीड वेलोसिटी स्लो होगा। मतलब ये V1 ग्रेटर देन V2 उतना ही रहेगा ना, और V2 लेस देन V1, उसका मतलब ही वो है V1 ग्रेटर देन V2, तो वो तो आपका उतना ही चलेगा। लेकिन आप यहाँ लिखते समय V2 अपॉन V1 लिखोगे, दैट विल बी N1 अपॉन N2 एंड दैट विल बी माय N12। तो ये बन जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट। अगर इफ दे आर आस्किंग दैट light is going from denser medium to the rarer medium, that's all. So this was the derivation for the refraction due to plane wavefront. I hope you have cleared that, you understood that. If you have to note down, I will go sideway, you may note down that, इसका screenshot ले लो। हो गया बेटा? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम में आपको दिया। अब इसके आगे जाते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन we will do next derivation, that is my reflection due to plane wavefront। तो यहाँ पे हम ज्यादातर हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करते हैं, वहां पे भी हमने किया, लेकिन मैंने आपको एकदम सिंपल में बताया, हालांकि आपको महसूस होने नहीं दिया कि मैं हाइजेंस प्रिंसिपल यूज किया हूं। कैसे समझने का मैंने हाइजेंस प्रिंसिपल यूज किया है? इट मींस दैट व्हेनेवर आई एम यूजिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड b dash a dash v1t v2t, मतलब मैं वेवफ्रंट सेकेंडरी वेवफ्रंट का ही जिक्र कर रहा हूं। आई एम स्पीकिंग अबाउट द सेकेंडरी वेवफ्रंट व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग अबाउट द b dash एंड a dash। हैव यू गॉट द पॉइंट? हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या है बेटा, वो दिखाते हैं आपको। आगे क्या है, आगे हम देखेंगे डेरिवेशन फॉर ये भी 5 स्टार है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेवफ्रंट बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। यहाँ पे पहले पे मैंने आपको ज्यादा दिखाया नहीं था कि वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंडरी वेवलेट, ज्यादा कुछ करने का नहीं, वो स्पीड का खाली ठीक से लिखने का, ये ध्यान में रखो। नहीं तो बुक में देखोगे, बोलोगे सर बुक में ये दिया है वो दिया है। बुक का डायग्राम फॉलो करो, मैंने दिया है वैसे ही करो, उसमें खाली एक आपका सर्कल आना चाहिए उस डायग्राम में, बाकी कुछ नहीं। सर्कल मतलब आपका सेकेंडरी वेवफ्रंट, बस लोकस, बस उससे आपका सेकेंडरी वेवफ्रंट बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे हर एक पॉइंट के लिए वो बनेगा। तो उस चीज के लिए आपको ध्यान में रखना है कि वो ऐसा तिरछा बनना चाहिए, तो उसके लिए कैसे आप वो स्फीयर बनाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ही स्फीयर बनाने का काफी है आपको, बाकी इंफॉर्मेशन पूरा उसमें डालने का, पेस्ट करने का, नो प्रॉब्लम। डायग्राम निकालने का, डेरिवेशन ठीक से लिखने का, और टाटा बाय बाय बोलने का, आगे जाने का। ओके बेटा, अभी हम जाएंगे डेरिवेशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट। तो द सेम थिंग, यहाँ पे मैंने एक मिरर लिया, दिस इज सपोज माय मिरर, और इस मिरर के ऊपर मेरा एक प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है। मीन्स प्रूविंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेवफ्रंट by using Huygens principle. Derive the expression for refraction of a plane wavefront by using Huygens principle. Prove the law of reflection by using Huygens principle. Prove the law of refraction by using Huygens principle. Prove the Snell's law using Huygens principle. ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते। उसमें ये सेंटेंस मिलेगा, ये सेंटेंस मिलेगा, तो देखने का कहां से कहा जा रहा है, रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए एक ही मीडियम में जाएगा, उसका कुछ सवाल ही नहीं आता है। सो लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन पार्ट। तो कंसीडर अगेन देयर इज वन वेवफ्रंट व्हिच इज कमिंग इंसिडेंट। वेवफ्रंट बोले तो ये पैरेलल रे का बनेगा। तो यहाँ पे ये आ गया, ओके, तो ये बन जाएगा ए।
तो उसी टाइम इसको अगर मैंने परपेंडिकुलर निकाला तो ये मेरा बन जाएगा बी। तो ए बी क्या बन जाएगा मेरा, ए बी बन जाएगा बेटा, ए बी बन जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ए बी क्या बन जाएगा मेरा इंसिडेंट। ये तो एकदम सिंपल है, कोई भी करेगा, नर्सरी का बच्चा भी करेगा, थोड़ा सा बोलेंगे तो मतलब उसको ड्राइंग वगैरह नहीं आएगा, बोलने का नजरिया है, बाकी कुछ नहीं। अभी ये जो रिफ्लेक्ट करेगा तो कैसे करेगा, तो यहाँ पे मैं उसको नॉर्मल लगा देता हूँ। नॉर्मल लगाने के बाद बेटा देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने नॉर्मल डाला, ये आई, तो ऑफ कोर्स ये आई है, तो ये इसको मैं रिफ्लेक्टेड बनाता हूँ, ये बन गया मेरा नॉर्मल, ये बन गया आर। इसको थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ। तो यहां पे भी वही हालत हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा आई, इसको पैरेलल ये चला जाएगा। तो यहां पे मेरा जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये आना चाहिए, क्योंकि वो मैं वेव फ्रंट है। तो ये बी है, ये बी डैश, ये ए डैश। तो देखो हाँ बेटा कैसे हो जाएगा, पहले ए आ गया, ए रिफ्लेक्ट हो गया, जब ये इधर आया ये परपेंडिकुलर, बाद में वो आगे चला गया, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो आने के लिए ठीक से देखो, आने के लिए ये मेरा बन गया ए बी, और जाने के लिए जाते समय ये बन गया मेरा, क्या बन गया बेटा, ए डैश बी डैश। ठीक से देखो, आते समय ये ऐसे आया, ए बी आया, और जाते समय ये ऐसे गया, ए डैश बी डैश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे भी आपको इसको परपेंडिकुलर बनाना चाहिए, तो इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह आप लिख सकोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आ गया ये, ठीक है। अभी यहाँ पे हम RHS क्राइटेरिया यूज करेंगे, यहाँ पे हम RHS क्राइटेरिया यूज करेंगे। वहां तो अभी क्राइटेरिया यूज करने का जरूरत ही नहीं था, यहाँ पे तो लाइट एक ही मीडियम में जा रहा है, तो स्पीड वगैरह लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। कंसीडर ट्रायंगल A dash B dash and triangle AB B dash AB B dash and apply RHS criteria। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, यहां पे whatever is the angle, that is very important। इस ट्रायंगल के लिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो ये मेरा बन जाएगा, ये आर है ना, ये मेरा बन जाएगा आर, और इस ट्रायंगल पे ये जो बन गया ये मेरा बन जाएगा आई। ये कैसे आता है ये मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे ये आपका ज्योमेट्री है, ये आपका ज्योमेट्री है, कैसे दिखाता हूं, यहां पे दिखाता हूं। इस बाउंड्री पे ये आ गया, ये 90 डिग्री है। अगर इसने परपेंडिकुलर से एंगल आई बनाया है तो ये भी एंगल आई बनाएगा, बन गया। तो यहाँ पे सॉरी ये आर नहीं आई बनेगा, सॉरी ये आर बनेगा। वैसे ही जाते समय ये ऐसे बन गया, तो अगर ये यहां से आर बना रहा है तो ये भी आर बन जाएगा, जैसे मैंने। तो इतना ही ध्यान में रखो, ये डायग्राम ध्यान में रखो, ये जितना एंगल है ये इतना ही एंगल होगा अगर ये ऐसे जा रहा है। ये इस केस में ये आई आई है, अलग वाली इस केस में ये क्या बन जाएगा, ये मैं नहीं देख रहा हूं, बराबर। तो
ये अगर r है, बराबर, r ही है ना ये, हाँ, तो ये मेरा r बन जाएगा। ओके, आप समझ गए होंगे, जितना एंगल वर्टिकल से किया है उतना एंगल और हॉरिजॉन्टल से। एक लाइन को मत कंसीडर करो, डोंट कंसीडर सिंगल लाइन, आपको कंसीडर करना है पूरा वेव फ्रंट को। तो अभी ठीक हो गया, अभी आरएचएस क्राइटेरिया यूज करो। आरएचएस क्राइटेरिया करने के बाद कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, रेशो ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश। क्यों? सिंस वेव फ्रंट इज ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम, वेव फ्रंट इज ट्रैवलिंग, नहीं तो मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूं, ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश विल बी इक्वल टू वी टी, विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। एक ही मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है तो वो तो कांस्टेंट आ जाएगा। बाद में ए बी डैश क्या बन गया? ए बी डैश बन गया कॉमन हाइपोटेनस, कॉमन हाइपोटेनस, ए बी डैश बन गया कॉमन हाइपोटेनस, ए बी डैश बन गया कॉमन हाइपोटेनस। इसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके चलते ही मैंने अप्लाई क्या किया है? आरएचएस क्राइटेरिया अप्लाई किया है। देयरफॉर वी गेट, क्या बनेगा आपका? एंगल बी ए बी डैश विल बी इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश। बट बी ए बी डैश कितना है? एंगल आई है, ये है एंगल आर। सो हेंस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरीफाइड, अरे सॉरी, प्रूव। थोड़ा देखो कितना इजी है, बताने के लिए 1 घंटा लगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 घंटे का वो तो सवाल था, थोड़ा सा प्लेन वेव फ्रंट वगैरह भी बताया, तो आपको लिखने के लिए 5-10 मिनट में उसको लिखना है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ इतना मैंने 1 घंटे में आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अब इसको देखो, आप इसको नोट डाउन करो, मैं आपको 1-2 सेकंड का फ्री टाइम देता हूँ, स्नैपशॉट ले लो, इसके बाद में हम बात करेंगे। हो गया बेटा? हो गया? अभी हम आगे देखते हैं। ये तो बन गया अपना। अभी तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया अबाउट द what type of questions are asked on this. Okay, so now beta I want to go for the next point. Before that it's okay, last में आपको बोलूंगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेजूंगा, ठीक है? Now we have studied what is mean by wave, how the wave is progressing in the medium, प्रोग्रेसिव वेव भी हमने स्टडी किया है, सब चीज हमने स्टडी किया है। 11 में तो हमने बहुत सारी चीजें वो भी हमने कंसीडर की है। अभी वेव फ्रंट सीखा हमने, वेव फ्रंट सीखने के बाद वेव नॉर्मल सीखा, हाइजेंस प्रिंसिपल सीखा, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन सीखा वेव फ्रंट के लिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद में हमने रिफ्लेक्शन का रूल प्रूफ किया वेव फ्रंट के लिए, प्लेन वेव फ्रंट के लिए, रिफ्रैक्शन का रूल प्लेन वेव फ्रंट के लिए हमने प्रूव किया। वी हैव डिड दैट। नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो अभी यहां से अपना वेव ऑप्टिक्स पूरा उसका रूप लेना चालू करेगा। यहां तक तो ठीक था, सिंपल में आप कर सकते हो, ये भी सिंपल नहीं है, थोड़ा उसका क्रिटिकल है, ट्रिकी है लिखने के लिए, समझने के लिए एकदम सिंपल है, लिखने के लिए थोड़ा क्रिटिकल है। अभी यहां से अपना ये चालू हो जाएगा।
तो यहां से हम लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल मैंने आपको 11th क्लास में भी पढ़ाया है। सेम प्रिंसिपल हमने वेक्टर्स में भी पढ़ा है, सेम प्रिंसिपल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाया है। खाली वेव के लिए आपको वेव के टर्म में उसको लिखना होगा। तो आपको मालूम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब वेक्टर एडिशन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? ओके, तो प्रिंसिपल ये है, मैंने आपको लास्ट टाइम को भी बताया था। अगर आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो भी ठीक है, अभी याद कर लो। देखो, when two or more waves traveling in a medium when two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously. When two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously. दो वेव है traveling in a medium arrive at a point simultaneously. यहां से मैं इसलिए ऐसे दिखा रहा हूं। When two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement independent of the other. Each wave produces its own displacement independent of the other. The resultant displacement at that point is the vector sum of the displacement produced by individual wave. ये आपको ध्यान में रखना है। सो इस रूल को हम लिख के लेते हैं। रूल कैसे करना है, क्या करना है, दैट वी विल सी इन द टुमारोज लेक्चर। तो वहां के लिए हम रूल लिख के लेते हैं। तो लिखो बेटा, मेरे पीछे पीछे लिखते जाओ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। व्हेन, थोड़ा बड़ा हैंडराइटिंग में लिखता हूं, टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग इन ए मीडियम arrive at a point, arrive मतलब reach, arrive at a point simultaneously comma each wave produces its own displacement independent of the other. The resultant displacement at that point is equal to the vector sum of individual displacements or vector sum of displacement produced by each wave. तो ये हो गया अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो बेटा, आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। मैं इसको रिपीट करता हूं, मेरे साथ साथ आप आपके मन में उसको थोड़ा सा ये करो, विजुलाइज करो और लिखते भी जाओ। आपको मैं फिर से बताता हूं। When two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously. When two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement independent of the other. एक मीडियम में अगर दो वेव आ रहे हैं तो एक दूसरे को बता के नहीं आएंगे, कैसे भी आएंगे। एक का क्रेस्ट आएगा, दूसरे का ट्रक आएगा, एक का ट्रक आएगा, दूसरे का क्रेस्ट आएगा, वो बता के नहीं आएंगे। तो व्हेन ऐसा होता है, व्हेन टू और मोर वेव्स, ऐसा भी नहीं दो ही चाहिए, दो से ज्यादा भी होता है।
when two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, उस point को क्या होता है? Each wave produces its own displacement, खुद का displacement produce करती है, independent of the other. मेरे को दूसरे का मालूम नहीं, हमको आपको बता देना, आप अपना मार्क का देखो, दूसरे का मत देखो. दूसरे को कितना मिला सर, उसको 50 मिला, मेरे को 70 मिला, उसके साथ कंपेयर मत करो. आपकी कंपैरिजन अपने साथ होनी चाहिए. योर कंपटीशन एंड कंपैरिजन शुड बी विद यू ओनली. सो वैसे ही वेव के लिए उसको कंपटीशन एंड कंपैरिजन खुद के साथ, जो कुछ कंपेयर करना है, जो कुछ कंपैरिजन करना है वो खुद के साथ. तो ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर. The resultant displacement at that point is, it's very important. Now whatever now I am going to tell you, that is very important. The resultant displacement at that point, ये आपका हर टाइम कैसे आता है? Not only the regular sum, ना, it is the vector sum. तो यहाँ पे वेक्टर सम का मतलब क्या है? तो एक बार फिर से इसको दोहराते हैं, मतलब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा. इसके बाद आपको मैं वेक्टर सम का थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को हम ये देखेंगे. सो अपना रूल क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? व्हेन two or more waves traveling in a medium arrive at a point simultaneously, each wave produces its own displacement independent of the other. The resultant displacement at that point is the vector sum of the individual displacement produced by each wave. तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है अगर इन शॉर्ट, in the medium, if there are two crests, then I will get a big crest. If there are two trucks, I will get a big truck. But if it is one crest and one truck similar, I will not get anything. This is the thing. तो अगर आपको देखना है तो एक मेरा वेव ऐसे आ रहा है और दूसरा वेव मेरा ऐसे आ रहा है, उसी एम्पलीट्यूड का, थोड़ा क्या बन जाएगा? Resultant, इसका इफेक्ट, resultant will be no displacement. Resultant will be no displacement. On the other hand, ऐसे हो रहा है, देखो बेटा, ऐसे हो रहा है. एक मेरा वेव ऐसे है, दूसरा वेव ऐसे है, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट बन जाएगा थोड़ा सा बड़ा वाला वेव बन जाएगा, उसी वेवलेंथ का, लेकिन एम्पलीट्यूड ज्यादा बन जाएगा. ये बन जाएगा रिजल्ट. This thing I wanted to share with you. So till now we have discussed about everything of Huygens principle and all. I have started also with the new, that is the superposition principle. So today we shall stop here. Tomorrow we will start to discuss the superposition principle and the analytical treatment for the waves which are coming at one point, and that is actually the basic first of the interference of light. So till that I suggest you to stay home, stay safe, stay tuned with physics. Till that, bye bye.